اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے عنوان سے یہ ہماری مسلسل گفتگو ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ ہی صاحبان عقل ہیں۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شرح ابن حدید متدلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313 ہے، اس کے اشعار میں ان اشعار میں جواب دیا ہے جب کفار نے کہا تھا ہم سے ایک لڑکا لے لے، اس کی پرورش تو کر لے، محمد کو ہمارے حوالے کر دے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ان کو دلیلیں دی ہیں، کہا کہ لوگو یرناس برہان علیہ وحیبت وما جائل فی قوم مثل عالم۔ پورا عرب محمد عربی کی حیبت اور دلائل سے آشنا ہے، پورے عرب کو پتہ ہے کہ جو میرے محمد عربی دلائل دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں نہیں ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین۔ جو اگر تم سچے تم دلائل لاؤ۔ جناب ابو طالب کافروں کو کہہ رہے ہیں تم جو مجھے لڑکا دیتے ہو پرورش کے لیے، میرا محمد جو لیتے ہو، میرے محمد کی حیبت سے پورا عرب گواہ ہے کہ میرا محبوب دلائل دیتا ہے، اس کے دلائل کا تمہارے پاس کچھ جواب ہے تو لاؤ۔ اور اپنی قوم کے جو لا علماء کے ہم مرتبہ کب ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید میں قد جاءکم برہان من ربکم، جب علم کی باری میں آئی تو سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، میرا محبوب میں نے تجھے وہ عطا کیا جو کائنات میں تو نہیں جانتا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میرا تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تم تورات و زبور میں چھپاتے ہو، میں رسول ظاہر کرتا ہے، اور یہ نور بھی ہے اور اس کے پاس کتاب مبین بھی ہے۔ تو جو جناب ابو طالب علیہ السلام تشریح کافروں کو کر رہے ہیں، قرآن ان کی تائید کر رہا ہے۔ نبی عطاہ الوحی من عند ربہ، محمد وہ نبی ہے جس کی طرف اللہ کی طرف وحی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم خود فرمایا اتبع ما یوحی الیہ، میں تو اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قال من یقرأ بها سن نادم، جو کہتا ہے وحی نہیں آتی وہ پشیمان ہوگا، وہ شرمندہ ہوگا، نادم ہوگا۔ میرے محمد عربی کے پاس وحی آتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں حسین الفاظ ہیں جناب ابو طالب کی تائید میں، جو ابو طالب نے کافروں کو کہا کہ محمد وہ نبی ہیں جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو کہتا ہے وحی نہیں آتی وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی بولتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تطیف بہ جرثومۃ ہاشمیۃ، اس کو گھیرا ہوا ہے پورے بنو ہاشم قبیلہ نے۔ تذب عن کل آت و ظالم، جو ہر ظالم و سرکش کا دفاع کرے گا۔ اور میرے مولا امیر المومنین کا خطبہ ہے کہ دیکھو میں نے 19 سال میں بڑے بڑے عربوں کو کچومر نکال کے رکھ دیے ہیں۔ اور جناب محمد عربی نے کہا کہ محمد عربی کا پاس ایک پورا قبیلہ ہے جو سیاہ شخص ظالم کا دفاع کرتا ہے۔ یہ اشعار اس موقع پہ کہے ہیں کہ جب سرور کونین کے عوض قریش نے اپنا لڑکا دینے کی پیشکش کی تھی۔ سیرت حشام میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 میں، اور شرح ابن حدید متدلی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313 میں، بلوغ العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، خزانۃ الادب از خطیب بغدادی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 میں، اور تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر
87 में, सनल मतालिब सफ़ा नंबर 6 और सफ़ा 13 में ये किताबें हैं जिनमें ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अशार मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, हम क्यों नहीं सीरत जनाब अबू तालिब से लेते? हम इन झगड़ों को ख़त्म करके क्यों ना अबू तालिब अलैहिस्सलाम और सरकार ख़त्म अकबर खुशनुदी की खातिर जनाब अबू तालिब की ज़ात पर कीचड़ उछालना छोड़ दें, जब रिवायत में, दिरायत में और कुरान मजीद की आयात जनाब अबू तालिब की सपोर्ट करती हैं। और हम क्यों ना, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम सहाबा कराम के मानने वाले हैं, हम अज़वाज मुतहरात का एहतराम करते हैं, तो जनाब अबू तालिब को भी एक बहैसियत साहबी समझ के अगर एहतराम किया जाए, अगर गुस्ताखे सहाबा मुजरिम हैं, तो फिर हम हज़रत अबू तालिब की शान में गुस्ताखी करके क्या मुजरिम नहीं हो रहे? इस बात पे भी गौर करना होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो नात खान रसूल भी हैं, जो मुहाफ़िज़ रसूल भी हैं, जो निकाह खान रसूल भी हैं, उनके हम अशार लेके कुरान और हदीस की रोशनी में जा रहे हैं ताकि तमाम आलम इस्लाम को अज़मत अबू तालिब और सहाबी रसूल, कफ़ील रसूल, निकाह खान रसूल की अज़मत का पता चले और हम उस ख़ानदान की मार्फत नसीब हो। हम तमाम मुसलमान एक और नेक होकर उस दर पे झुकें जो अल्लाह का दरवाज़े हैं, जो हिदायत के दरवाज़े हैं, जो नबी करीम के वारसान हैं। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाया, अला अबलिगा अन्नी अला ज़ाति बैनहा लवैया व खस्सा मिन लवी इब्न क़ौब। ऐ दोनों कास दो, ये कुरैश मक्का से खिताब कर रहे हैं कि मेरे दिल की आवाज़ बनी लोई व बिल अमून लवी बिन काब को पहुँचा दो। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफ़ार मक्का से खिताब कर रहे हैं। अलम तालमू अन्ना वजदना मुहम्मदन रसूलन कमूसा खत्तुन फी अव्वलिल कुतब। क्या तुम नहीं जानते कि हमने मोहम्मद अरबी को मूसा की तरह रसूल पाया है, जो तमाम इल्हामी किताबों में तहरीर है। ये कुफार मक्का को खिताब कर रहे हैं और ये सूरत मुज़म्मिल इसकी तायीद नहीं कर रही कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। फिर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुफार मक्का से खिताब होके नात खानी रसूल करते हैं। वह अन्ना अलैहि फी इबादिल मुहब्बतन वला हैफा फी मन खस्सहुल्लाह बिल हुब्ब। मोहम्मद से मुझे गहरी मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? जिसे अल्लाह ने बिलखसूस महबूब बनाकर भेजा है और इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। जो मुझे कहते हो, जो मुझे मलामत करते हो, कह दे दो। कुरान मजीद में क्या हसीन अल्फाज हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु कौमन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतन अल मुमिनीना इज़्ज़तन अल काफिरीन युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह ला यखाफूना लौमतन लाइमिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। जनाब अबू तालिब ने नज़ूल कुरान से पहले जो जनाब ख़त्म अतबत की शान में कसीदे पढ़े, जो नातें पढ़ी, जो उन्होंने मोहब्बत के दावे किए, कुरान ने बाद में उनकी तर्जमानी की है। कुरान ने उनका करैक्टर ज़ाहिर किया है। और जब काफिरों ने मुआहदा किया था शेब अबी तालिब का, तो फरमाया था अन्नल्लज़ी रकस्तुम फी किताबिकुम यकूना लकुम यौमन कराहियतल सखबी। ये जो तुमने मुआहदा किया ना मोहम्मद अरबी की दुश्मनी का, ये एक दिन तुम्हारी दावत फिक्र बन जाएगा। तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे। जब गए तो सरकार खिदमत ने फरमाया चाचा जाएं, जो मुआहदा था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। तो न जब काफिरों के पास गए, फरमाया शायद अबू तालिब आ गए हैं और जुल्म से तंग हो गए हैं, शायद माफ़ी मांगते हैं और मोहम्मद अरबी को हवाले करते हैं। फरमाया बात सुनो,
जो मुआहदा लटकाया था ना काबे पे हमारे साथ सोशल बाइकाट का, उसकी तहरीर तो पढ़ो, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, सब भाग के गए। देखा तो अल्लाह का नाम, फिर किसने बताया? फरमाया जिसकी तुम तकजीब करते हो, जो सादिक और अमीन है, जो मेरी जान और रूह है, मुझे मोहम्मद अरबी ने बताया है। तो जब जिसको अल्लाह का नाम सरकार खत्म में खुद दिखाया, क्या वो अल्लाह को नहीं मानता था? क्या वो रसूल खुदा को नहीं मानता था? क्या रसूल खुदा के कहने पे नहीं गए? क्या रसूल खुदा के इताअत नहीं की? ऐफकु कबल अन तोफरत रुबा व यसब मल्लम यहन ज़म्बन कदी ज़म्बिन। और गड्ढे खुदने से पहले होश में आ जाओ, इस वक्त से पहले समझ जाओ कि जब के बेगुनाह और गुनाहगार बराबर के मुजरिम बन जाएंगे। गड्ढों में तुम्हारी लाशें होंगी, उससे बाद आ जाओ। अभी जंग बदर हुई नहीं, जनाब अबू तालिब पहले बता रहे हैं कि तुम्हारी लाशें गड्ढों में पड़े होंगी। आज भी बदर में वो कुआं मौजूद है जो हुज्जाज करम जाते हैं। जनाब अबू तालिब ने पहले बताया कि तुम मेरे मोहम्मद अरबी की मुखालफत से बाज हो जाओ, वरना गड्ढों में तुम्हारी कब्र, तुम्हारी जो लाशें हैं वो पड़ी रहेंगी और तुम्हारी कब्रें गड्ढे बन जाएंगे। वला तत्तबउ अम्रल गवात व तक्तई औ अमरना बादल मबद्दत वल क़ुरब। फरमाया गुमराहों की बातों में मन बांधो और गुमराहों की बातों में आकर बामे रिश्ता और मोहब्बत की किराबत को पारा पारा मत करो। जनाब अबू तालिब कह रहे हैं कि वला तत्तबउ अमरल खवात व तक्तियु, यानी तक्तियु और भला तक्तियु, और कभी भी सिला रहमी कत्ल ना करो। क्यों? पारा पारा ना करो, फसादियों की बात ना मानो, गुमराहों की बात ना करो। और कुरान मजीद में सूरत आराफ में अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबि सबील अल मुफ्सिदीन, फसादियों के रास्ते पे न चलो। वला तत्तबि अहवा कौमिन का ज़ल्लु मिन क़ब्लो, मेरा महबूब ने कह दो कि उस कौम की इत्तिबा न करो जो गुमराह रह चुके हों। सुम्मा जअलना का शरीअतन अल अम्र फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने मेरा महबूब तुझे अपने अमर की शरीयत अता की है, इत्तिबा करो और उन लोगों की पैरवी ना करो जो गुमराह हैं, जो जाहिल हैं। जनाब अबू तालिब ने फरमाया अपने अशार में, अल्लाह अकबर, गुमराहों की बात मत मानो और गुमराहों की बात में आकर बामे रिश्ता मोहब्बत कराबत को ख़त्म ना करो। बतस्तजलिबु हरबन अवान व रुब्बमा अम्र अला मिन ज़ाकिही हल्बुल हर्बे। गुमराहों की बातों में आकर चक्की पीस डालने वाली जंग बपा करने से बचो। बाज़ औक़ात जंग का दूध बाज़ लोगों के लिए तल्ख होता है। अब मेरे मौला फरमा रहे हैं कि अब तुम गुमराहों की बातों में आकर जो पीसने वाली जंग है उससे क्यों नहीं बचते? तो ये है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो काफरों को कह रहे हैं कि गुमराहों की बातें ना मारो, कुरान उसकी तायद कर रहा है। तो अल्लाह हमें नात खान रसूल ने जो हमें सरकार ख़त्म मरतबत की शान बताई है, हमें इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की खैर करे, अल्लाह तमाम मुसलमानों ने आलम की खैर करे। आज़म अल्लाह जूरना बेमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलनाकुम वय्यकुम मिनत तौलबीना बेसारी मौली इमामुल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह मुबारक ज़ुमर की आयत मुसलसल समात के लिए हदिया है, इरशाद खुदाबंदी है, बशारत दो मेरे उन बंदों को जो हर बात कान लगा के सुनते हैं और पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब हम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो
नात खान रसूल भी हैं, निकाह खान रसूल भी हैं, कफील रसूल भी हैं, साहबी रसूल भी हैं, मोमिन अव्वल भी हैं, मुसद्दिक रसूल भी हैं, और अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। उनके जो उन्होंने काफरों को खिताब किया है वो अशार मुसलसल आपकी समात के लिए दिए हैं। फलस्त व बैतुल्लाह नस्लम अहमदा लअज़ाई मन अज़्ज़ल ज़मान वला करबा, बैतुल्लाह की कसम हम कभी भी मोहम्मद को हवासात ज़माना और मसाइब के डर से तुम्हारे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये है जनाब अबू तालिब का अकीदा। और सूरत अनफाल सूरत नंबर 9 आयत नंबर 72 में अल्लाह ने फरमाया, वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की खुदा के राह में, और वो लोग वल्लज़ीना आवव व नसरू, और वो लोग जिन रसूल को पनाह दी और उसकी मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिन हैं और उनके लिए मगफरत भी है और रिज़्क़ करीम भी है। अब जनाब अबू तालिब ने फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम हम कभी मोहम्मद को हवासात ज़माना और मसाइब के डर से तुम्हारे सपोर्ट नहीं करेंगे। और कुरान मजीद में क्या है कि सच्चे मोमिन वे हैं जो रसूल की नुसरत करें और रसूल को पनाह दें। 41 वर्ष तक जो मोहम्मद अरबी के साथ रहा है, क्या वो मोमिन नहीं है? और जनाब अबू तालिब ने फरमाया, वलम्मा तबय्यन मिन्ना मिनाद मनकुम सौ अल्फा व अय्यद तरफो बिल मुनहद्दर व शअब, अभी तुम्हारे और हमारे तल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए और ना ही हिंदी तलवारें और चमकते नेज़े के हाथ कटे हैं। जनाब अबू तालिब कह रहे हैं कि ओ काफरो, तुम ज़हन से निकाल दो, क्या मोहम्मद अरबी को तुम्हारे हवाले करेंगे? हम हवाले नहीं करेंगे। क्यों? कि ना हमें कोई डर है, ना हमें खौफ है, और अभी तक तुम्हारे और हमारे तल्लुकात मुनक़ते नहीं हुए। अभी हमारे तुम्हारे तल्लुकात हैं, हम इस माशरे में रह रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदी तलवारें हैं जब उठेंगी तुम्हारे सारे हमारे तल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, इससे बचो। फ़बिमा तरका तराकसल कना बही वज़ुबाइल क़रजी तअक़्क़ुफ़ुल कशरबी, अभी तक हमारे तुम्हारे दरमियान कोई ऐसी जंग नहीं हुई जिसमें नेज़े टूटे हों, लंगड़े भेड़िए तक मकतूलों का खून पीने की खातिर पानी के घाट की तरह टूट पड़े हों। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि इतना खून हम बहाएंगे कि भेड़िए पानी पिएंगे, खून की नदियां बहाएंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी को हवाले नहीं करेंगे। कानुल मजालुल खैला फी हुजरतिही व मुअम्मतल अब्ताल मरकतल हरबी, ऐसी जंग जिसका खुला मैदान घोड़ों की जोलानगाह होगा। हकीकत यह है कि बहादुर का इम्तिहान मैदान जंग होता है। जनाब अबू तालिब ने फरमाया, अगर तुम हमें रोक डालते हो, तुम हमें डराते हो, हिंदी तलवारें तुम्हारे साथ उठेंगी, हम खून की नदियां बिठाएंगे, और ऐसी जंग जिसका खुला मैदान घोड़ों के जोलानगाह होगा, तो ऐसे घोड़े होंगे बलादियात ज़बन फलमूरियात कदहन। ये कुरान फिर घोड़ों की कसमें खाता है। क्यों? जनाब अबू तालिब ने पहले फरमा दिया। आगे फरमाया, लैसा अबूना हाशिम, क्या हमारा बाप हाशिम नहीं था? शनानदहु व औसा बनी है बितान व बिलगरबी, क्या हमारा बाप हाशिम नहीं था जो हमेशा अपने बेटों को वसीयत करता था और हमेशा कमर बस्ता रहता था, तलवार जनी और नेज़ाबाजी की वसीयत की थी। ये तलवार तीर जंग ये हमें खानदान विरासत में मिला है। मेरा बाबा जो अबू हाशिम था उसने अपने बेटों को वसीयत की थी, तलवार की, नेज़ाबाजी की, तो हमें डराते हो? हमारे तो घुट्टी में है शहादत, सआदत और शुजात। वलना नमुल्लुल हर्ब हत्ता तमुन्ना वला नस्तकी मिम्मा यनूब मिनल नकबी, हम कभी जंग से नहीं थके, ना कोई हमें जंग थका सकती है, ना हमें कभी हवासात का शिकवा किया है। हमने कभी शिकवा नहीं किया हवासात का। हम भूखे रह जाएंगे, प्यासे हो जाएंगे, लेकिन मैदान से नहीं भागेंगे। हमारे बाबा अबू हाशिम ने हमें वसीयत की थी। तो क्यों मेरे भाइयों, जो कुफार को
اپنے خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ندیاں تو بٹھا سکتے ہیں لیکن میدان سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب پتہ چلا علی کبھی کسی جنگ میں نہیں بھاگا، اس لیے نہیں بھاگا کہ جناب ابو طالب نے اپنے خاندان کا تعارف اس انداز سے کراچی کا تھا کہ ان کی خاندان میں یہ بھاگنے کی رسم ہی نہیں تھی، ان کی گھٹی میں بہادری تھی، ان کی گھٹی میں شرافت تھی، ان کی گھٹی میں علم تھا، اور ان کی گھٹی میں شجاعت تھی، ان کی گھٹی میں سخاوت تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔